producing confident students, leaders, and strong personalities. But what truly creates successful students in today's world? बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, वो टॉपर्स बाद में जाके सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उसने किताब, स्कूल, ट्यूशन, उसके अलावा तीसरी चीज देखी ही नहीं। तो जब उसने देखी नहीं तो उसको कैसे पता लगेगा? Leadership always flows and the qualities, attributes flow from top to down. We are the only school have produced a minister, a private school. What is the biggest parenting mistake today? They're scared with the students. So if I do this, he's going to commit suicide. If I do this, he'll go into depression. If I do this. Boarding schools की बात करें, लोग बाग ने ना बोर्डिंग स्कूल को करेक्शन सेंटर बोलना शुरू कर दिया। Boarding school should not be treated as correction center. It is a place to give your child new wings. I was the only one to be awarded by Dr. Kalam in 2010 for innovation in academics at IIM Ahmedabad. Okay. I'm the only school owner to be awarded. And there he explained what is the generation gap. And today I laugh at people. Because what he said is becoming all true. Today we will explore education, parenting, leadership and discipline and future of learning with Dr. Samarjit Singh, who is MD of Sai Grace Academy, Dehradun. One thing students should stop doing. Welcome Samarjit ji. Thank you for accepting our invitation to the Edu Voice. Here at Edu Voice, we bring lot of education leaders from all across India who has done remarkably well in the education space. So, thank you for attending today, Samarjit ji. Thank you very much for calling me and being. Now, people see successful schools, but behind every institution, there is a personal journey. So, I would like to start from your personal journey first. Tell us about your childhood. What kind of student you were when you were growing up? A very interesting question. And I am an army kid. My father was in service and he was a pure infantryman, as you were seeing pictures, Colonel Saab, and then he has same disciplined life, approach, sports. I've been studying it throughout India in different places, remotest and the good cities as well. Being alumni of Army Public School, Delhi, did my basic schooling from there, then shifted to Kendra Vidyalaya in Palampur. You must have heard about Vikram Batra, Saurabh Kalia. They were two batch senior to me, and we were playing tennis together at Palampur Halta camp. And after that, I moved to Hyderabad, did my 11th and 12th, and good memories. Did my college from Dehradun, did my BSc MSc from Dehradun, did my master's in MBA program from Dehradun. But you yourself imagined that you will be in education, or No, how it started? Actually, it all started with a cause. We were here in Dehradun. My father was posted here. And there was a school, another branch of ours, not Raipur. There's a branch at Nathwawala. So some had good family friend took us there, and they wanted we should do something for that particular area, because the school was in a very shabby condition and it was in pathetic condition, and he being from that area, he wanted that school to come up well. And which motivated, and we started that school for my mother. My mother was initially sitting in that school, and slowly, gradually, we gave that service industry a look of a public industry, and we started all together as a family. And now my wife is working as principal in the school, and we are moving shoulder to shoulder. Great. It was initially with the entire family was part of it. But slowly, gradually, we took this step. Me and my wife took this step, and we came up to a profession, and with the bent of mind of service. And who influenced you the most for the school? Actually, here I have a different vision. Actually, it is me. My own dreams actually influenced me to run the school better and better every day. Because we are from a service family background, so we want to give service, but at the end of the day, we would like to do business as well.
Mhm. So I had to make a balance between service and business, and I'm happy working with Sai Okay. Grace. Now, when you were setting up this school, Sai Grace Academy, so what were the biggest struggles which you have faced? Actually, every business, any business you set up, and That especially starts with Sai that Grace. setups with struggle. Yes. So we had a number of setups. Struggle was there. Initially, there was a struggle. Why you have opened here? You don't belong to this place. Why you want to create a school? They were. I हिंदी में क्या कहावत है ना, तो मैं किसी का बैरी हूँ ना मैं किसी के साथ बैर करता हूँ. सो ये एक मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कहावत है और इसको मैं चाहता हूँ ये सब स्कूल वाले आपस में माने. सो यू शुड हैव बेसिकली good feelings between the competitors as well. And just because we wanted to do the service part, so we gave the school everything which the school wanted. We gave the school the international is the name, Sai Grace Academy International is the school name. So we wanted to give that international edge to the school. So we have introduced so many programs in our day-to-day coming. We have been tying up with companies like Educom and Benesse, Britannica, and we got a good list of companies. For every subject, we have a different contract. The school has recently been introducing robotics and AI learning for every kid. We have come up with a VR education as well. Smart classrooms are existing in the school. So we have changed from a rote learning to the new setup of learning where the student feels happy and they say yes, we have a school where we got everything. In sports, no school as what I know, no school has introduced paddle tennis, pickleball in the day school. What I am talking about, but we have paddle tennis court. We are the only school in the entire India to have a paddle tennis court. And I'm heading the association for Uttarakhand, Paddle Tennis Association Uttarakhand. We give opportunities to students to play. And this being a solo game where the individual can excel, so and it will be sooner or later will be introduced in Olympics. We have a bit of mind in giving students giving an extra edge. We introduced rugby for girls, our girl team. There's one girl named Mehak. She's been playing internationally on the senior level, and she was playing on the junior level. And we have some national players playing rugby with us, kabaddi, kho-kho. We have national players with us with our school. That's great. Thank what you. was that moment when you realized that now you have to give your whole life to education? I don't think it was the initial years. What was that moment? I am too young for that. If you say that way, there was no moment where I wanted my life to be given to school. But yes, I have pledged my services towards the school. To be more precise, I work with my team tirelessly. We work to uplift. I believe I'm the only school owner who sits for a too long period in the school office. Normally people sit for 2 hours, 4 hours, 6. I have a sitting which goes up to 8 hours in a school some days. So we come up to the level, we change, because if school is what I feel these days, we have to give every day a new thing. Every month there should be a new other than a scheduled timetable ke alawa, the students, they want something to be different. What news is there? If they go for some holidays, if they go for summer holidays, they come back. So something new should have been given as the school in the school premises. They also feel motivated to come to school. They feel attached to the school. Great. अब जैसे you are building the school और काफी सारे challenges आएंगे. Again, I am on that part. This success looks glamorous from outside, but what was your darkest phase while building that school? Because I think it's a 20 plus years of journey now. We are completing 24 years. This December we'll be completing 24 years. The journey is tiresome. But yes, the challenges have been met, and they've been met, and they've been tackled very well with us. They're with the entire team, whether it is academic team, whether it is administration team. The entire team put their 100% with me, and we have come up with all the obstacles which were given by the government or by the society, but we have overcome all the obstacles with God blessing. Okay, great. And what kind of students you were emotionally, like confident one, disciplined one? What was your? I was all over because at a young age
I have been shifting school there in 2 years, 3 years time. Every 2 years, 3 years, I was shifting my school. So if I was not a confident student, I would have been left behind. So I was always an extrovert child, meeting, greeting, and socializing with my seniors, juniors, making basically giving them an environment where they can interact with me on a very bigger platform. So we were onto it. Now, seeing the same thing, leadership always flows and the qualities, attributes flow from top to down. So same qualities can we expect like in the school students also? How do you like live up to that? Okay, you might be hearing it on a just it's not a joke, or we are not on a lighter movement of it. We are the only school who have produced a minister, a private school. Okay. So we have produced in Loba Kete, we have produced engineers, we have produced doctors, we have produced this, we have produced that. Okay. I am the only private school has produced a minister. Minister kaun se hai minister? He's Surinder Diler. Recently, he's been appointed as Rajya Mantri from UP government. Okay. Great. So he's a student of mine, and God bless him. Okay. He's doing well Great. in his life. So my students are excelling everywhere. So I'm happy that way. Being a father to everyone, I'm happy everywhere. Great, great. So now when people talk about boarding schools in India, Dehradun always comes first. What makes the city so special Actually, about Dehradun? Dehradun has a word Doon. And for everybody, Doon school still is a benchmark for boarding. So Doon school, they have done remarkably well. They have been doing the experiential learning part so well. I've been interacting with the principal of the Doon school on various platforms. So the school is different because they're charging different, the curriculum is different. But we have students who are coming from the right CBSE curriculum. They're coming. We have because we are a middle segment school. We have parents from middle class families. So what facilities basically we are giving? It is not as part to Doon school, but it is not even less than Doon school. Okay. Because in the budget, what we are offering to the Doon school boarding, they are better than that. Experiential learning, we also give them experiential learning part and everything. And why Dehradun is famous Why because of Doon city school. is so special about the schools? Doon, actually earlier there were two towns in Uttarakhand. One was Nainital and another was Dehradun. Okay. The schools have been established much before independence. Much before independence. Doon School, Wellams, and Sherwood. These schools, Colonel Brown, these are very old schools. They've been established by the Britishers. Okay. Marshall. These schools were St. Thomas, St. Joseph. These schools were initially, these were the only schools in Dehradun. And they carried out everybody because Dehradun was one time part of, till 1975 was part of Commissioner Meerut. So Dehradun was initially part of Meerut. So Meerut and in and around that, now Meerut is the part of NCR. So people in and around, if it strikes boarding, the first thing is, Dehradun. can we have our child in Doon? So they start calculating, and once it is Doon and anything with the Doon name, it is excelling. Okay. Great. And now, how is the scenario now? What unique points still Dehradun has in terms of schools now? Dehradun, actually, we have a very good educative system. We have teachers who are very well qualified. Here in Dehradun, what we have found recently, or for last 24 years, what I have found, people are studious. People they have a thinking about job. They don't have bent of mind regarding business. Now, earlier also, today also, we got very good scholars in Dehradun. All top scholars are from Dehradun. You name a university, anybody in any university, you will find some of the top bosses from Dehradun. Because the scholars, we normally in Dehradun study very hard. And does environment also, nature also plays some role in this student growth, or it's just nature is a blessing in Dehradun? Nature is blessing in Dehradun because we don't have a constant temperature, not in winters as well as in summers. So nature plays a major role. But at the end of the day, but other than nature also, we have other roles as well. Okay. And what separates Dehradun school culture from metro schools? Because there also the category of schools are there.
like who are charging 3 The- lakh, 5 lakh? It is not the fees actually. It is not the bricks which make the school. Mhm. Again, it is the staff. It is the involvement of the staff. Here, what we have the staff. We have the staff who is involved throughout, Mhm. and they are really doing very well. The involvement of the staff makes the school basically, Okay. not the bricks and pillars, not the facilities. Mhm. So if you have an involved staff, there's a word involved staff. Mhm. स्टाफ तो सभी स्कूलों में होता है, पर इन्वॉल्व स्टाफ अगर होगा तो आपकी एक एकेडमिक टीम ग्रो करेगी, और एकेडमिक टीम के पास एक ग्रोथ और एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मेथोडोलॉजी होगा तो स्कूल के एकेडमिक्स ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी. ओके, बट फिर भी ऐसा क्यों है कि देहरादून से काफी सारे पर्सनालिटीज निकलते हैं, देहरादून के स्कूल से काफी बड़े बड़े पर्सनालिटीज? Actually, they are groomed that way. The schools have been groomed that way. Their teachers are 40 years, 30 years experienced teachers are there in the previous old schools. And that grooming of the teacher or the student, if you learn from experience of somebody, so you have to have an experienced teacher. But if you have a fresh teacher, so his experience and the experience of a senior teacher will be different. The experience always counts. बट अब इसमें आपको क्या लगता है कि जैसे इतने प्रीमियम स्कूल्स में स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, क्या वो इतने ग्राउंडेड रहते हैं या? देखिए, अब मैं यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ. मैं अपने हर कॉन्फ्रेंस में एक ही चीज को बोलता हूँ कि कनेक्टिविटी, अगर एक स्टाफ की कनेक्टिविटी अपने स्टूडेंट के साथ रहेगी, एक वार्डन की कनेक्टिविटी, एक हाउस जो मेट्रन होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं या एकेडमिशियंस होते हैं, इनकी कनेक्टिविटी अपने बच्चों के साथ रहेगी, तो आप यकीन मानना बच्चा ग्राउंडेड रहेगा. आप अपने घर में देख लीजिए, इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर किड्स, योर वाइफ और योर फैमिली, इफ द कनेक्टिविटी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. So what I feel in Dehradun or in around Dehradun, staff, school owners, head of the schools, they want to connect with the students, and this basically connected feeling of the student makes them grounded. They think there's somebody there to listen to them. The minute the things of feeling like this goes away, कि there's nobody to listen to us, there is a resistance, and that resistance causes disturbance. Okay, great. But now with that, now there are very good schools, and obviously they are parents also adopt for that comfortable and luxurious schools also. Actually, So what do you think? Comfort and luxury? अभी आप देखिए, परसों का योगी जी का एक ट्रोल है. परसों का योगी जी का एक ट्रोल है. वो ट्रोल बड़ा सिंपल सा ट्रोल है. उस ट्रोल में योगी जी ने एक ही चीज कही है, बच्चों को काम करवाइए. और बहुत अच्छे से उन्होंने बोला कि बच्चों को अगर वो आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो आगे जाके देश के लिए दिक्कत होगी. आज की डेट में सिंगल पेरेंट, सिंगल मदर, सिंगल मतलब स्टूडेंट और सिंगल चाइल्ड इन द फैमिली इज कॉजिंग अ ट्रबल टू द फैमिली एज वेल एज टू द सोसाइटी. वो जब प्यार 4 में बंटना था वो 1 पे आ गया. उससे क्या हुआ, ओवर पैम्पर्डनेस आ गई बच्चे में. और वो इनिशियली ओवर पैम्पर्ड करते थे बच्चे को, लास्ट में जाके दिक्कत आती है. पहले 5 साल बहुत अच्छे लगते पूछना चाह रहा था, क्या वो स्टूडेंट्स को और वीकन नहीं करते हैं? आप यकीन मानना, आप जितने ये सो कॉल्ड गुड स्कूल्स, 5-star schools, get vitamin D checked of every student, you will be having lack of vitamin D because they sit down entire day in ACs. Their bodies are not habitual to summers. They are not habitual for playing. They are not rough. Going to gym doesn't make you rough. And as long as you have a rough life in school, you are not going to make a life. School is a place where people make you rough. If you make them rough, you make them do everything. You make them stand. You make them feel that heat. You make them, give them opportunity of playing games. There are differences. So अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो definitely they are not अब देखिए getting that strength. अब देखिए बताऊँ, every now and time you will see students are coming with weaker eyes, weaker physical standard. Students are not able to, they're gaining weight, or they just what complaints we are facing these days is my ward is very erratic once he comes to school or comes from school. And what we tell them, once your ward comes to school, he's erratic because he's without the phone for that next 6 hours, which you are supposed to give them. The phone is becoming, social media is becoming cancerous. We need to do something to tackle them. And the best part is to make them busy. And to make them busy is to make them play. We have opened up our gates to entire student of ours, and we don't charge even 10 rupees from them for evening games. It is free of cost.
Anybody comes play in the school, our But school. those student actually comes? Yeah, we have students every day who are playing, coming and playing, Okay. and that is the blessing. Hmm. Because if you don't give them exposure, how are they Hmm. going to play? Hmm. So they need time for themselves, na? Now what I am seeing is parents are also today very much involved than earlier days. No, they are not involved. They are Yeah. not involved. Why I don't think parents are involved? Because parents are overthinking, overprotective with the child, and the involvement is a different world altogether. If the parent is involved, so that means his learning pattern will improve. Hmm. Whereas if the people, I think they are more of over providers. over providers, overthinkers, Hmm. without the requirement of the thing, if you are giving that things to the student, there the The students are getting more anxious. So what's the आज reason की for डेट that? में आप देखिए कि एंजाइटी का बेसिक कारण मोबाइल है. Hmm. आपने पहले किसी को ड्रग दे दिया, उसके बाद आपने उसे ड्रग खींच लिया. Hmm. ड्रग खींचोगे तो क्या होगा? एंजाइटी होगी उसको. Hmm. आप सारा कुछ तो बच्चे के फोन पे, उसका सोशल मीडिया. अब आपका बेसिकली हम लोग इंडिया में कहते हैं 18 इज द मैच्योरिटी एज. Hmm. यूएस में कहते हैं 13 इज द मैच्योरिटी एज. तो Okay. जितने हमारे ये आपके सोशल मीडिया है, उसमें 13 इज द एज कैप व्हिच हैज बीन पुट अप राइट इन इंस्टा और फेसबुक और व्हाटएवर. नाउ इफ द स्टूडेंट इज हैविंग हिज इंस्टा अकाउंट एट द एज ऑफ 13, दैट मींस ही इज हैविंग हिज इंस्टा अकाउंट इन 7th or 8th class. Hmm. Suppose if he is busy with his Insta account in 7th and 8th class, what he is going to do in class 12th? Will he True. reach to class 12th? No. Agreed. अब जो आपका रिजल्ट है अभी 12th क्लास का, सीबीएसई की कोई गलती नहीं अगर आप इसको आज पकड़े. Hmm. सीबीएसई ने स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के मार्क्स दिए. Hmm. बच्चों को आंसर तो निकाल दिया, पर स्टेप लिखना भूल गए. Too fast to calculate True. without the steps. It's again causing a problem. चलो ये इतनी प्रॉब्लम्स हैं. अब एक ऐसी स्टूडेंट स्टोरी बताओ दैट इमोशनली स्टेड विद यू, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, क्योंकि देयर मस्ट बी पॉजिटिव्स आल्सो. देयर आर पॉजिटिव्स आल्सो. I had a student way back. और 2 साल ही पढ़ा था मेरे पास वो. He was wing commander. I was having a lunch and 10-15 years back. Hmm. He came to me, saluted, and he said, "See, sir, I'm become an Air Force officer. It's such a pride moment for the school." I said, "Yes, definitely, it's a pride moment for the school. But sir, वो जो punishment है, वो जो आपने motivate किया, जो आपने हमें दिखाया, which today I'm here because of your guidance. That was really an emotional connect." Okay. Still, I have students. They are the boarding or the day school. They come and visit us, and I talk to them. I chat with them. And the connectivity I would like to carry on, and they also see to it. You are still connected to I'm lot connected of students. to many of the students, most of the Okay. students. They are from Dehradun itself or No, outside. I have the boarding school as well. Hmm. So कभी किसी शादी होती है, किसी का कुछ होता है, कहीं कुछ बुलाता है, कोई alumni interaction होती है, तो I normally go out and You go there. Yeah. Okay. Great. चलो अब थोड़ा सा पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं. What is the biggest parenting mistake today? Biggest parenting mistake is they're scared with the students. They're scared with their own word. So if I do this, he's going to commit suicide. If I do this, he'll go into depression. If I do this, देखो 2 4 5 वर्ड पकड़ लिए पेरेंट ने. सुसाइड, डिप्रेशन, एंजाइटी. और जब तक इन शब्दों का उनको पता ही नहीं है, पर ये वर्ड पता है उनको. ये वर्ड्स पहले इतने यूज नहीं होते थे. हमारे पेरेंट होते ही नहीं थे, एंजाइटी में आते ही नहीं थे. हमारे तो पेरेंट कहते थे सूत दे भाई, पकड़ के इसको. तो अब सूतना और सूत्रा होने में बहुत फर्क होता है. तो अब सूतोगे नहीं तो सूत्रा नहीं बनोगे. हरियाणा में सूत्रा मतलब इसे साफ सुथरा बच्चे को सूत्रा बोलते हैं. सो अगर आपको अच्छा करना है, अच्छा करने के लिए आपको एक्सेल करना है लाइफ में. बिकॉज आप देखिए कि आई वॉज द ओनली वन टू बी अवॉर्डेड बाय डॉक्टर कलाम इन 2010 फॉर इनोवेशन इन एकेडमिक्स एट IIM Ahmedabad. Okay. I'm the only school owner to be awarded. Only school owner to be awarded by Dr. Kalam for innovation in academics. And there he explained what is the generation gap. And today I laugh at people. Because what he said is becoming all true. Once I sit down on a chair and interact with parents, कोई भी सच नहीं बोलता एक तो. ना पेरेंट्स सच बोलता है ना बच्चा सच. क्या बोलते हैं वो? They want to. अब we have experience. I have experience of 30 years, 3 decades I put on my life
in the school and in the education. I know what the child or the parent is speaking and who's going to speak what will be the end result. But with my experience, what I share with students is कि I want them to grow, and to make them grow, they have to have a environment to grow, which the parents are not providing. They cannot provide. Today, if both husband and wife are working, they cannot provide an environment in house to grow. True, totally agreed. ठीक है, अब उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे तो वो तड़का लगा देंगे कि क्या तो मम्मी से नहीं बनेगी ग्रैंड पेरेंट की, या पापा से नहीं बनेगी. मम्मी से नहीं बनी तो मम्मी के अगेंस्ट बच्चे को बोलेंगे, पापा से नहीं बनी तो पापा के अगेंस्ट बच्चे को बोलेंगे. अब बच्चा क्या करेगा, ब्रिज बनाएगा और पार हो जाएगा. बच्चा क्लेवर है, बच्चे को सोशल मीडिया सब सिखा रही है, आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है. आपको बच्चे को पता है किस टाइम कौन सा बटन दबाना है. आपको मैं बताता हूँ, मैं एक 2012 का इंसिडेंट है, लुधियाना में थे हम लोग, एक अफेयर्स करके कंपनी है, उसने कॉन्फ्रेंस कर रखी थी. तो देयर वी वांटेड टू, आई वाज ऑन द स्टेज, वी कनेक्टिंग विद द पेरेंट. तो देयर वाज अ क्वेश्चन कि भाई मैं कहाँ से आया हूँ. दिस वाज सपोज्ड टू बी आस्क्ड बाय द पेरेंट टू द चाइल्ड, एंड द पेरेंट सेड सर ये मैं कैसे पूछ सकती हूँ. तो मैंने कहा भाई ये क्वेश्चन इसलिए नहीं था कि बायोलॉजिकल है, ये क्वेश्चन इसलिए था कि ये टाइम ओरिएंटेड है. तो कहते क्या मतलब. मैंने कहा आपके अपने बच्चे से अभी पूछना है कि कहाँ से आया, अभी कहाँ से आया, बायोलॉजिकली कहाँ से आया नहीं. तो आप ही का दिमाग जब करप्ट है तो बच्चे से क्या पूछोगे. ठीक बात है भाई, हमने तो पूछा ये बच्चा कहाँ से आया. आप पेरेंट कहाँ ले गए, बच्चा कहाँ से आया. तो वो हमें नहीं पूछना था, हमने पूछना था वेयर ही हैज एक्चुअली कम फ्रॉम और वेयर ही कमिंग फ्रॉम. पर मेरा हिंदी रूपांतर था तो उसको जवाब नहीं दे पाई पेरेंट. एंड वो एक दूसरा ये है कि आज भी हमारे पास जो हम लोग के एज ग्रुप के हैं, अभी तो मेरे से छोटे हो गए बच्चे काफी, जिनके पेरेंट्स बच्चे आ रहे हैं, दे आर नॉट अवेयर व्हाट इज राइट और रॉन्ग विद देम, बिकॉज उन्होंने कुछ गलत अपने साथ होता देखा नहीं है और कुछ उन्होंने सही किया नहीं है. मतलब नोबडी शुड फील ऑफेंडेड, बट एट द एंड ऑफ द डे सही इसलिए नहीं कुछ कर पाए वो, क्योंकि उनका बेसिक ध्येय था कि आई वांट टू अर्न मनी एज क्विक एज मल्टीप्लाइंग लाइक एनीबडी एल्स. तो फास्टेस्ट मनी गोज फास्टली एंड फास्टेस्ट मनी विल कॉज यू हार्म. ट्रू, ये हमें बताया गया है. मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, बट जल्दी का पैसा जल्दी जाता है. तो धीरे धीरे कमाइए, धीरे धीरे ग्रो करिए तो अच्छा लगेगा. यू विल रियलाइज दैट ग्रोथ. टोटली एग्रीड. बट अभी आजकल स्टूडेंट्स इतने मेंटल स्ट्रेस में क्यों हैं, उनका क्या. देखिए, मेंटल स्ट्रेस स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं है. मेंटल पीस नहीं है बच्चे के पास. क्वेश्चन उल्टा होना चाहिए. बच्चे की मेंटल पीस किसने खींच लिया, फोन ने. वो रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक फोन पे रहेगा तो सुबह उठ के बच्चा कैसे तो उठ जाएगा. अगर वो सुबह उठ नहीं पा रहा है तो वो गया. सेल्फ हमारे को पहले कोई भी नहीं उठाता था, हमें आज भी कोई नहीं उठाता है. हम आज भी 5 बजे उठ जाते हैं. हमारे वाले बच्चे कहते हैं हमने उठना नहीं है. आप समझे मेरी बात. उठने के लिए अलार्म चाहिए उनको. हमें 4 बार जाके उठाना पड़ता है, भाई उठो, आज आपका ये कमिटमेंट, आज आपका ये कमिटमेंट. उठते नहीं है. उनके लिए सुबह उठना इज अ क्राइम. और जिसने सूरज नहीं देखा, मेरे हिसाब से उसने कुछ नहीं देखा, उसका पूरा दिन खराब है. उठ के सूरज जो बच्चा देखता है उससे बहुत एनर्जी मिलती है. हम एक संस्कारिक लोग हैं. हिंदुस्तान में संस्कृति एक अपने आप में बहुत बड़ा वैल्यू देती है. और सूर्य एक बहुत बड़ा पिविटल रोल है. आज भी, पहले भी था. सूर्य को अर्घ देना, ठीक है ना. किसी ग्रह खराब हो जाए तो आदमी कहता है अर्घ दे दो सूरज को. वो एक हमारा एक चक्र है जो यहाँ पे रहता है सिर पे, उसका मैं नाम भूल गया. वो चक्र को एक्टिवेट करने के लिए तो सूरज के आगे नतमस्तक तो होना पड़ेगा ना. थोड़ा सा सोलर एनर्जी चाहिए. बिल्कुल. आप रिन्यू, आपकी सारी एनर्जी तो खत्म होगी रात को, तो उसको चार्ज कैसे करोगे आप. उसको सुबह उठ के आपको चार्ज करना पड़ेगा ना. सूर्य को नमस्ते करो. सूर्य नमस्ते करो. सूरज को यहाँ देखो, अपने सोचो आंख बंद करके सूरज. वो जो तेज आपके चेहरे पे आएगा. आज के बच्चों को तेज ही नहीं है चेहरे पे. आप कोई भी बच्चा देख लो, उसके चेहरे पे तेज नहीं है. तेज इसलिए नहीं, वो तेज चार्जिंग ही नहीं है उसके चेहरे की. यहाँ तक ये बाल रख लेंगे, यहाँ पैंट बांध लेंगे. क्या है, फैशन नहीं है वो. व्हाट आई फील. नहीं, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं. अब एक, चलो ये बात आपने बताई वो सही है. एक बहुत टाइम से मैं भी मतलब देखता हूँ, जैसे मैं स्कूल में था और मैंने कितनी बार ये देखा है कि बहुत सारे टॉपर्स होते हैं
वो टॉपर्स बाद में जाके सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं? मतलब कई बार ऐसा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ये है कि इसमें दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें गौर करनी है। पहली चीज ये है कि जो टॉपर्स होते हैं वो इनिशियली 2 साल 98 99 वाले बच्चे उससे बुकिश हो जाते हैं और वर्ल्डली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा जितने एलन वेलन है, मैं फोन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट नहीं, बट उसका एक लेजिटिमेट यूज करें, उसका एक जस्टिफाइड यूज करे बच्चा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब टॉपर्स क्या करते हैं? वो भी नहीं करते हैं। टॉपर्स वो भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ किताब कॉपी घर ट्यूशन स्कूल। मैंने बहुत देखा, मतलब अच्छा, उसके बाद क्या होता है, कई टॉपर्स को तो ट्रेन में चढ़ना भी नहीं आता है। अच्छा, आज तक उन्होंने ट्रेन भी नहीं देखी होगी कैसी होती है। अभी भी ऐसा ही है? बहुत है बच्चे ऐसे, क्योंकि उसने किताब स्कूल ट्यूशन उसके अलावा तीसरी चीज देखी ही नहीं। तो जब उसने देखी नहीं तो उसको कैसे पता लगेगा? जब तक बच्चा मिट्टी में रलेगा नहीं, खेलेगा नहीं, कूदेगा नहीं, मतलब एक लाइवली अपने आप को नहीं रखेगा, इंटरेक्शन नहीं करेगा। अब हम फौजियों के बच्चे क्यों ज्यादा अच्छे रहते हैं, सोशली कनेक्टेड ज्यादा अच्छे रहते हैं? उसका कारण ये कि हमें हर 2 साल बाद नए दोस्त बनाने हैं। जब हमें हर 2 साल बाद नए दोस्त बनाने, तो हमारे के अंदर वो स्किल होनी चाहिए। नहीं होगी तो हम चुपचाप एक किनारे बैठ जाएंगे, ना कोई दोस्त बनेगा, ना कोई भाई बनेगा, ना कोई बहन बनेगा, ना कोई फ्रेंड बनेगा, सब एक किनारे बैठे रहो आप। ठीक बात है। और जब कोई दोस्त नहीं बनेगा तो आप डिप्रेशन में जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे आपको एंग्जाइटी होगी तो तीसरे एक वो चीज बोली थी वो भी होगी। तो अब ये सारी चीजें, जैसे आपको काफी सारी चीजें पता है, तो स्कूल में कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं? स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, जैसे हम कैरियर गाइडेंस कराते हैं, वी मेक देम विजिट डिफरेंट प्लेसेस। जो बच्चा कई बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल बसेस में भी नहीं बैठते हैं, बस का भी ट्रैवल नहीं पता उनको, भाई स्कूटर से आए, स्कूटर से चले गए, स्कूटर से छोड़ गए, तो हम उनको बसेस में ट्रैवल कराते हैं। we send them out, we take them for excursions and all other activities as well, adventure activity भी कराते हैं। we recently introduced NCC। NCC से बच्चों को एक आउटर नेक पता लगती है। 9th-10th में हमारे पास जूनियर डिवीजन NCC है, थैंकफुल टू इंडियन आर्मी फॉर गिविंग अस दैट, एंड उससे बच्चों को काफी कुछ चीजें मिली है। बच्चों को इंटरेक्शन लेवल मिला है, उनको पता है फौज में क्या होता है, फौज क्या चीज होती है, वाई आर्मी इज देयर, वाई डिसिप्लिन लाइफ इज देयर, उनमें फर्क आता है वो 2 साल जब तक उस जूनियर डिवीजन में रहते हैं वो। ओके। और कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए क्या करते हैं? कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हम लोग स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करते हैं बेसिकली। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में हमारी प्रेयर्स हैं, हमारे यहाँ वाइफ मेरी जो प्रिंसिपल है स्कूल की, वो बाल विकास क्लासेस चलाती हैं विद सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन, एंड बाल विकास है, फिर कैरियर गाइडेंसेस हैं, फिर आपका पर्सनल कनेक्ट है जो बच्चों के साथ हम लगाते हैं, तो उससे कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। वी हैव लेक्चर्स फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, मतलब वो घर के स्कूल के टीचर्स का उतना नहीं सुनते, बाहर वालों को सुनते हैं। तो वी हैव दैट थिंग, वी हैव वेदा क्लासेस, तो वेद के भी प्रोनाउंसिएशन से भी कुछ काफी हद तक कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाता है। ओके, ग्रेट। काफी कुछ आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स भी, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। बट अब जैसे बोर्डिंग स्कूल्स की बात करें, बोर्डिंग स्कूल्स के लिए मतलब एक जिनको जाना होता है ना, वो बहुत सालों से सोचते हैं कि हाँ मैं तो अपने पेरेंट्स बच्चों को बोर्डिंग स्कूल्स में भेजेंगे। मैं यहाँ ना आपको एक चीज बोलूंगा कि लोग ने ना बोर्डिंग स्कूल को करेक्शन सेंटर बोलना शुरू कर दिया है। बोर्डिंग स्कूल शुड नॉट बी ट्रीटेड एज करेक्शन सेंटर। आई अर्ज एवरी फ्रेंड ऑफ माइन कि भाई आप जो भी बच्चा आपके पास आ रहा है उसको आप ये समझिए, बोर्डिंग स्कूल इज नॉट अ करेक्शन सेंटर, इट इज नॉट अ रिहैब, it is a place to give your child new wings, and those new wings the student enjoy, freedom होती है, independence। एक बच्चे का फर्स्ट मंथ कैसा होता है, इमोशनली कैसा होता है जब वो फर्स्ट मंथ कंफ्यूजन का होता है किसी भी स्कूल में, whether I have taken a right decision। कई बार पेरेंट्स डालते हैं, एडमिशन दिलाते हैं, फिर उसके बाद तीसरे दिन ले जाते निकाल देते हैं वापस यहाँ, क्योंकि पेरेंट खुद नहीं एडजस्ट कर पाता बच्चे के बिना। और बच्चा जो है वो एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बीइंग एन आर्मी किड, मेरे को पता है, मैंने हर 2 साल में स्कूल बदला है, तो बच्चों के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो बच्चा एडजस्ट कर लेता है, पर बाकी लोगों के अंदर नहीं होता है वो कैरेक्टर्स। बट आपको क्या लगता है, बोर्डिंग स्कूल से बच्चा इंडिपेंडेंट भी फास्टर बनता है? बोर्डिंग स्कूल में इंडिपेंडेंट फास्टर बनता है।
कि जब वो जाके खुद रहता है, खुद करता है ना, सारे काम खुद करता है, कपड़े से लेके धोने से लेके टूथपेस्ट खुद लाना है, कुछ करना है, कुछ रिक्वायरमेंट देनी है, खुद बताना है उसको। कुछ चीज खत्म हो जाएगी, मम्मी पापा बहुत दूर है, तो उसको किसी तीसरे को बताना है कि भाई ये सामान चाहिए। And what is the biggest myth parents have for boarding schools? They think this boarding schools are correction center, but I don't think boarding school are correction center. तो boarding schools क्या है actually? Boarding school is another place to give your child a freedom, give their time to life, to live life. Okay. To live life a little longer, safer life. Okay. Any of the boarding school they provide all the facilities, mental, spiritual and physical. और उसके बाद बच्चे को टाइम ही नहीं होता पूरे टाइम, right from 5 o'clock till 9 o'clock. He doesn't have time to think in any of the schools. He's there in that routine. He's running around that routine, completing that routine. Is that right or not? कि उनके पास सोचने तक का टाइम नहीं है? It is very right आज की डेट में, क्योंकि his mind is not going wild or is not putting a wild thought कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। वो तो एक सिस्टमेटिक घोड़े की तरह प्रोसेस्ड लाइफ जी रहे हैं कि एज पर प्रोसेस, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इट इज नॉट अ प्रोसेस लाइफ, इट इज सिस्टमैटिक लाइफ। सिस्टमैटिक लाइफ, हां, इट इज सिस्टमैटिक लाइफ, इट इज डिसिप्लिन सिस्टमैटिक लाइफ। ओके। एंड आई थिंक सक्सेस में भी जो आप कहते हो, जैसे आपने कहा कि फास्ट सक्सेस नहीं होती, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको डिसिप्लिन, बोर्डिंग स्कूल का जो एडवांटेज है वो आपको 26-27 साल में जाके पता लगता है कि मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा तो मुझको क्या एडवांटेज मिला। कि हर बार एक नया चेहरा से बात करनी है। बट पेरेंट्स से डिस्टेंस नहीं आ जाता? नहीं, कनेक्टिविटी बढ़ती है। इट इज अगेन डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट। घर गया और बच्चे के साथ ओवर प्यार करके सामान दे दिया तो सामान प्यार नहीं है। पर जो बच्चे के साथ वो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करते हैं, बातें करते हैं, उससे कनेक्टिविटी बढ़ती है। ओके। एंड हॉस्टल लाइफ कैसे शेप करती है एक बच्चे की पर्सनालिटी को? मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। कैसे ग्रो कराती है? मेंटली इसलिए क्योंकि वो रोबस्ट हो जाता है और उसको पता है कि मेरे को ही सारे काम करने हैं, नोबडी विल कम टू माय रेस्क्यू, आई एम द वन। तो उसको मेंटली बहुत ज्यादा रोबस्ट कर देती है, फिट कर देती है। तो ही इज वर्किंग विद ऑल ऑड्स एज पर द चाइल्ड, बट नॉट रियली, बट ही थिंक्स ही इज वर्किंग विद ऑल ऑड्स। तो इफ ही इज वर्किंग विद सम ऑल ऑड्स, ही इज मेंटली स्ट्रांग। और या तो बहुत मेंटली वीक हो जाएगा या बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और बहुत स्ट्रांग हो गया तो उसकी लाइफ आगे अच्छी चलती है। स्पिरिचुअली ऐसे कि शाम को सुबह घर में भी प्रेयर का माहौल नहीं होता है, यहाँ पे मेडिटेशन, यहाँ सुबह और शाम को प्रेयर्स होती हैं, मेडिटेशन होती है, कम से कम भगवान के आगे नतमस्तक 2 बार 3 बार दिन में हो रहा है। तो उससे भी काफी कुछ फर्क पड़ता है। और फिजिकली तो ऐसा है कि सुबह मॉर्निंग पीटी होती है, शाम को गेम्स होते हैं, तो वो कंपलसरी है। तो वो जब फिजिकल करेगा तो उसके बाद भी चीजें अच्छी होंगी, स्ट्रांग होगा। नहीं तो किसी भी घर में बच्चा 2 किलोमीटर सुबह नहीं भागता है, नहीं, unless he is in a boarding school. Agreed. And what do you think? Discipline जो आता है, discipline actually creates freedom? डिसिप्लिन और फ्रीडम 2 अलग अलग शब्द हैं। बच्चे फ्रीडम को अलग ले जाते हैं। देखिए, डिसिप्लिन इज नॉट फॉर फ्रीडम एंड फ्रीडम इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन। सो फ्रीडम इज बेसिकली समथिंग वेरी डिफरेंट and discipline is something different. We should not club together. Okay. नहीं, मैं इसको ऐसा सोच रहा था कि जैसे एक डिसिप्लिन आता है, तो डिसिप्लिन जब लाइफ बंदा जीना सीखता है तो उसके साथ उसके पास फ्रीडम भी रहता है और वो राइट स्टेप्स लेके उसमें विद डिसिप्लिन चलता है। फ्रीडम तो आपके पास है ही ना, गवर्नमेंट ने दे रखी है। फ्रीडम तो गवर्नमेंट ने दे रखी है। आपके लाइफ राइट होने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रीडम तो गवर्नमेंट ने दे रखी है। आपने मार नहीं खानी किसी से, ठीक है, आपको कोई मार नहीं सकता, बच्चे के लिए बता रहा हूँ मैं। तो फ्रीडम तो है आपके पास, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और डिसिप्लिन विल आएगा आपके हार्डवर्क से, टाइम शेड्यूल से नहीं आएगा। फैमिली के साथ जब बच्चा रहता है ना, तो फैमिली में फ्रीडम भी है, डिसिप्लिन भी है उन फैमिलीज में जो एक सिस्टमैटिक, एक टाइम शेड्यूल से बच्चे के साथ ग्रो कर रही है। और ऐसे क्या लाइफ लेसन है दैट ओनली बोर्डिंग स्कूल्स टीच? देखिए, बोर्डिंग स्कूल डजंट टीच एनी जियो साइंस, ठीक है। बोर्डिंग स्कूल टीचेस व्हाट द पेरेंट्स आर सपोज्ड टू टीच, बट द पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव टाइम। इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग एंड इफ देयर इज अ सिंगल मदर और अ सिंगल फादर, तो ऐसे भी पेरेंट्स बहुत आते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव टाइम, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन में से 6 दिन उनको अपने आप को टूटना तोड़ना पड़ता है अपने घर के खर्च निकालने के लिए। टुडे एग्जिस्टेंस इज अ मेजर क्वेश्चन।
अब agree. उतना आसान नहीं है आज एग्जिस्ट करना, आज की डेट में धरती पे रहना सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी मेहनत का काम है। जिंदा रहना, हंसते रहना और स्वस्थ रहना, ये 3 चीज बड़े मुश्किल है। और इन 3 की जद्दोजहद में जब पेरेंट घुस जाता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट। सो उस चक्कर में मैं कहता हूँ कि उसका बच्चा बोर्डिंग स्कूल में एटलीस्ट ही इज वन थॉट इज फ्री, यार माय चाइल्ड इज सेफ, आई विल टॉक टू हिम इन इवनिंग और ऑन संडेज एंड आई विल टेक हाउ इज ही हैप्पी एंड ही विल बी हैप्पी। बिकॉज ऑफ जितना सुबह से शाम तक की फ्रस्ट्रेशन है बच्चों में निकले, क्या फायदा है? टोटली अग्रीड, ये बात आप एकदम सही कह रहे हो। अब बच्चा भी खुश है। अब क्योंकि मैं ये सारी चीजें इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं जब वो बोर्डिंग स्कूल्स में बच्चे को डालना चाहते हैं या सोचते हैं, जब ये थॉट भी आता है। देखिए मैं बताता हूँ कि पेरेंट जब एक थॉट लेता है तो मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ, बोर्डिंग स्कूल इज नॉट अ प्लेस फॉर करेक्शन। तो व्हाट इज बोर्डिंग स्कूल एक्चुअली? बोर्डिंग स्कूल इज एडेड एडवांटेज टू द स्टूडेंट and to the parent, which gives them a platform to excel in life with discipline and which makes them emotionally, spiritually and physically growth आती है, जो कि घर में हम normally as a parent नहीं दे सकते हैं। क्योंकि घर में क्या है, मम्मी का प्यार, पापा का दुलार, वो सुबह उठने नहीं देता। और किसी भी बड़े से बड़े घर में, छोटे से छोटे घर में चले जाओ, कोई बच्चा सुबह मॉर्निंग पीटी नहीं करता घर में, वो सिवाय बोर्डिंग स्कूल का और कहीं हो ही नहीं सकती। शाम को एक डिसिप्लिन टाइम गेम का वो हो ही नहीं सकता घर में, उसके लिए आपको बोर्डिंग स्कूल आना ही पड़ेगा। आपको बच्चा अच्छा क्रिकेट खेला, ठीक है, वो 3 बजे से 6 बजे तक क्रिकेट खेल रहा है और वो भी तो गलत है। ठीक बात है। एक सिस्टमेटिक 2-1 घंटा खेल, अनलेस ही इज मेकिंग हिज लाइफ इन और ही इज थिंकिंग हिज लाइफ टू बी इन दैट स्पोर्ट्स, तब तो ठीक है। 5-6 घंटे कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा तो समझ में आता है, पर एक बैलेंस लाइफ के साथ चला तो 1 घंटा गेम सुबह, 1 घंटा शाम को बहुत है। ओके, नाउ comfortable lives often create uncomfortable adults. What do you think? Perfectly fine. Agree, disagree? Agreed. Okay. And children don't need unlimited freedom. They need... देखिए मैं पहले भी आपको बताया, फ्रीडम तो गवर्नमेंट दे रही है, तो फ्रीडम तो वर्ड ही नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज। अगर बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आप भी ग्रो नहीं कर पाओगे, मेरे पास अपॉर्चुनिटी तो मैं भी ग्रो नहीं कर रहा हूँ। बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देनी है। अपॉर्चुनिटी कौन देगा? ठीक बात है, पेरेंट देगा, बच्चा तो नहीं ले सकता। अब बच्चे को, पेरेंट को अपॉर्चुनिटी देने के लिए टाइम भी चाहिए, तो टाइम कहाँ से निकालेगा? तब हम बोर्डिंग स्कूल रोल प्ले करते हैं। ग्रेट ग्रेट। कोई अगर पेरेंट बोर्डिंग स्कूल को लेके कंफ्यूज हो, वो बिल्कुल आपसे पूरा ले सकते हैं गाइडेंस। यस, ठीक है। अब कुछ जैसे आपको क्या लगता है, अब जैसे एआई और ये सारी चीजें जो एजुकेशन का फ्यूचर है, आपको क्या लगता है विद दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कि अपनी एजुकेशन अभी ओवर, जो क्या बोलते हैं, आउटडेटेड हो चुकी है? नहीं, एजुकेशन कभी आउटडेटेड नहीं होती। पहली चीज, ज्ञान कभी कम नहीं होता। ज्ञान तो जितना मिल जाए उतना बढ़िया है। अभी आप समझो कि हमारे वेद आज भी नहीं, जो एजुकेशन सिस्टम है, इस सिस्टम भी खराब नहीं है। अभी देखिए, देयर इज अ डिफरेंस। पहले रॉट लर्निंग होती थी, अब रॉट लर्निंग नहीं होती है। पहले आप एग्जाम पेन पेपर पे देते थे, आज कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देते हैं। और आगे जाके एआई के थ्रू आप एग्जाम देंगे। एआई का, रोबोटिक्स का जमाना आ गया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप देखिए सारा ड्रोन की वजह से लड़ाइयां हुई हैं। ड्रोन ऑपरेशन ज्यादा हुए हैं, चाहे पाकिस्तान की साइड से या इंडिया साइड से। सो एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, दे आर गोइंग टू प्ले अ पिवटल रोल इन फ्यूचर। ओके, सो इससे आपको क्या लगता है, will AI reduce the importance of marks और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए वो एक अलग ही सब्जेक्ट है। AI रोबोटिक्स एक सब्जेक्ट है। AI रोबोटिक्स आपकी नेसेसिटी नहीं है, AI रोबोटिक्स आपकी सब्जेक्ट है। इफ यू वांट टू स्टडी AI रोबोटिक्स, यू स्टडी AI रोबोटिक्स, पर अच्छे से पढ़े, टाइम पास नहीं पढ़े। जैसे बहुत से स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन होती थी, आज से पहले भी, आप जब छोटे हो गए आपने भी देखा होगा, वो 2 छोटे कंप्यूटर लगा के देते थे, हमने कंप्यूटर एजुकेशन दे दीजिए स्कूल में। वो क्या कंप्यूटर एजुकेशन दी पता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। 2 ही कंप्यूटर होते हैं और उसमें 2 कंप्यूटर में 40 बच्चे बिठा के कह रहे कंप्यूटर पढ़ा रहे जी हम। तो मैं कहा यार ये कौन सा कंप्यूटर एजुकेशन हो रहा है? कंप्यूटर एक्सपीरियंस मैं तब आया हूँ जब ये सब चीजें मैंने देखी जिंदगी में। मैंने कहा 2 कंप्यूटर से 40 बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ये कंप्यूटर एजुकेशन तो बड़ा मुश्किल है। और वो टूटा सा एक पीसीजेड कंप्यूटर होते थे उन टाइम, बड़े बड़े से, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक बार अभी सैम पित्रोदा को मैं एक कॉन्फ्रेंस में मिला था, उनका एक मैंने कन्वर्सेशन सुना आपस में, एंड इट वाज सो, आई होप यू नो सैम पित्रोदा।
Sam Pitroda is one who got computers in India actually, Rajiv Gandhi ji के साथ, and what he spoke was very well. So one student stood up his hand कि sir, what about my job as can I get an SC/ST offer? So he said I was an SC/ST student. I am a true example of a tribal student, but I didn't took any of the benefits. And I'm doing very good in my life. So my dear student, my dear brother, why you want to do this? Why you want to have a reservation in jobs? Why you want to have a reservation in degree? Let the right one attain good degrees. True. तो ये है सारी कहानी. बढ़िया. तो अभी आपको क्या लगता है नेक्स्ट 10 साल में कौन सी स्किल्स डोमिनेट करेगी? देखिए, स्किल कोई भी डोमिनेट करे, आपका मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. ओके. स्किल तो आपको चाहिए. आज हम लोग आज भी स्किल बेस्ड नहीं है. बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी स्किल बेस्ड नहीं है, बड़े से बड़ा स्कूल स्किल बेस्ड नहीं है. चाहे आप स्किल में कितनी मेहनत करें, बहुत मेहनत की जरूरत है. आज अगर हम 100 कदम चल रहे तो हमें 1000 कदम स्किल की तरफ चलना पड़ेगा. We are really truly lacking in skills. CBSE is giving opportunities, universities are giving opportunities, but skill नहीं कर पा रहे हैं achieve. तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या रीजन? Atmosphere, environment, connectivity. मेरा सारी चीज कनेक्टिविटी से है. आज आपको स्किल चाहिए, आज आपको एक सपोज आपको एक अकाउंट रेडी बच्चा चाहिए जो अकाउंटेंट बन जाए, पर वो इतना ज्यादा उसको पढ़ा दिया जाता है अकाउंटेंट के बारे में, उसको टैली पढ़ाया नहीं जा रहा. उसको अकाउंट्स पढ़ाई जा रही पर टैली नहीं पढ़ाया जा रहा. काम उसने टैली पे करना है, सैप पे करना है, तो कैसे करेगा वो? आप मुझे बताइए. आप स्कूल में टैली पढ़ाइए ना एज अ सब्जेक्ट, तो बच्चा टैली सीख के जाएगा. 12th के बाद कम से कम उसकी नौकरी तो लग जाएगी. ठीक बात है. आप स्कूल में उसको अकाउंट से सारे बैलेंस शीट सिखा दिया, ये सिखा दिया, वेरी गुड. आपने कंसेप्ट सिखा दिए, लेकिन नहीं, कंसेप्ट नहीं, वो तो बेसिक है ना, वो तो बेसिक है. वो बेसिक तो उसको सारा आ गया, अकाउंट्स आ गया, बैलेंस शीट आ गया, ये पता लग गया, डिबेंचर क्या होता है, शेयर क्या होता है, सब पता लग गया. बट क्या उसको टैली पे काम करना आता है? नहीं आता. जब उसको टैली पे काम करना नहीं आएगा तो प्रभु मेरे, तो उसको स्किल तो जीरो है. अब वही चीज उसकी ग्रेजुएशन में होती है बीकॉम में, टैली उसको वहां भी नहीं सिखाया जाता, और टैली के लिए उसको अलग से कोर्स करना है. तो फिर जब टैली के लिए कोर्स करना है तो टैली इज अ स्किल, तो बाकी चीजों के लिए क्या करेगा? एग्रीड. तो उसको तो पहले तो मतलब सिस्टम ही, आप कह रहे हो एटमॉस्फेयर जो है उस पे काम होना चाहिए. हाँ, सिस्टम. हमारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज है. हमारे पास स्किल मिनिस्ट्री आ गई है. अब स्किल मिनिस्ट्री में स्किल मिनिस्ट्री को पता होना चाहिए हमें करना क्या है. राइट मैन ऑन राइट चेयर होना चाहिए ना. एग्रीड. राइट मैन ऑन राइट चेयर होना चाहिए. हमारे पास है ही नहीं, ये दुर्भाग्य है देश का. ओके. तो अब इसमें आप क्या चेंज लाते हो? जैसे आप काफी स्कूल्स के गवर्निंग उसके प्रेसिडेंट भी हो, तो व्हाट चेंजेस? देखिए, मैं सबको 2-3 चीजें मैंने बोली है कि पहले तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, फिर इंटरेक्शन लेवल क्रिएट करो. अपॉर्चुनिटी और इंटरेक्शन लेवल जब बच्चे के साथ आपका बढ़ जाएगा, क्रिएट हो जाएगी, उसको दिखेगा कि ये चीजें हम कर सकते हैं. आज की डेट में हम पहले कभी कैरियर काउंसलिंग नहीं करते थे. आज की डेट में हम स्कूल में कम से कम 10 या 12 कैरियर काउंसलिंग अलग अलग कंपनीज के साथ मिलकर करते हैं. Where we have foreign universities, where we have Indian universities, when we give them students a platform where they talk to private universities, चाहे वो फॉरेन की है चाहे इंडिया की, where they talk and interact. जब वो बात करते हैं तो उनको पता लगता है यार इंडिया में तभी आज भी हम स्किल नहीं सिखा पा रहे हैं. और क्या होता है, जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो कॉलेज वाला कहता है तू तो पीछे से सीख कर आया होगा दोस्त, और कॉलेज भी स्किल नहीं सिखाता. कॉलेज भी कुछ नहीं सिखाता. आप देख लो बीकॉम वाले को, बीकॉम वाला बच्चा क्या वो टैली पे काम कर सकता है बिना टैली की ट्रेनिंग लिए हुए? नहीं कर सकता. और जरूरत क्या अकाउंट्स में आज की डेट में? टैली चाहिए ना. बिल्कुल. फिर आप एमकॉम भी कर लो, अगर आपको टैली नहीं आता तो आप अकाउंट्स तो जीरो है. उससे बेटर वही भाई खाता तो बनाना नहीं आज की डेट में. बेटर तो वो अकाउंटेंट जिसने शायद बीकॉम भी नहीं किया लेकिन उसको टैली. मैं कहता हूं जिसने 10th करने के बाद टैली कर ली वो ज्यादा अकाउंटेंट से बेटर है. ही इज अर्निंग बेटर. टोटली एग्रीड. ठीक है, काफी कुछ आपने इनसाइट्स दिए. नाउ लेट्स हैव अ quick rapid fire, then we will go for the wrap up. One word for Dehradun. A true place for living. Okay. Boarding school or day school? Boarding. Marks or skills? Skills. Discipline or freedom? Discipline. Mobile phones in school? Ban. AI teacher or human teacher? Human teacher. Okay. Tough teachers or friendly teachers? Connected teachers.
None of Biggest- those. Okay. Biggest parenting mistake. Over pamperedness. Okay. One thing students should stop doing. They should use less of technology or social media platforms. Success means Discipline. a strong child is Connected. one thing India's education system urgently needs. Connected. Okay. 20 years from now, when today's students become leaders, parents, and citizens, what kind of India do you hope they create? They will get a better India. They will get a better skill India, which I think they should. But for that, we have to work from today for the next 20 years. The students may get all the opportunities which they are dreaming about. Okay. जैसे मुझे अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डालना है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ. सबसे पहला कंफ्यूजन, जैसे मेरे लिए कोई फाइनेंशियल चैलेंज नहीं है, तो मुझे लगता है क्या मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जैसे सारे फ्रेंड्स हैं जो आईटी कंपनीज रन कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स 10 से 15 लाख रुपए जो बच्चों की फीस है ईयरली, वैसे स्कूल्स में उन्होंने डाल रखा है. तो क्या मुझे भी मेरे बच्चों को वैसे किसी स्कूल में डालना चाहिए, या 5-7 लाख देखना चाहिए, या मुझे क्या सोचना चाहिए? मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ, और क्योंकि मैं इतने सारे कैंपसेस विजिट करता हूँ तो मैं और ज्यादा कंफ्यूज हूँ. देखिए, मैं बताता हूँ, अभी आपका कंफ्यूजन यहाँ ऐड हो जाता है कि लर्निंग आउटकम क्या है. हाँ. तो जब आपका लर्निंग आउटकम अच्छा रहेगा बच्चे का, क्योंकि उस लर्निंग आउटकम क्या, what you see your child after 2 years या 1 year, because first year in boarding will not make your child grow. वो सेकेंड ईयर में ग्रोथ नजर आएगी, और वो लर्निंग आउटकम से ही नजर आएगी कि उसने क्या सीखा है, उसने स्किल सीखा है, उसने डिसिप्लिन सीखा है, उसने सेल्फ डिपेंडेंसी सीखी है, सेल्फ मोटिवेशन सीखा है, पढ़ना सीखा है, अपने आप इंडिपेंडेंट रहना सीखा है. वो जब आप मेजर करोगे तब आपको पता लगेगा बोर्डिंग स्कूल कहाँ कितना अच्छा है. चलो, अब इसमें एक चीज ये बताइए कि जनरली मुझे, मतलब अगर बोर्डिंग स्कूल, पहला क्वेश्चन तो यह था, बोर्डिंग स्कूल भेजूं तो क्यों भेजूं, अगर नहीं भेजूं तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स, कुछ आप मेरे को बता सकते हैं? देखिए, बोर्डिंग स्कूल भेजना बहुत जरूरी है बच्चों को आज की डेट में. पहला प्रो तो ये है कि बोर्डिंग स्कूल आपके बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएगा, जो हम अपने घर में नहीं सिखा सकते. हम अपने घर में नहीं सिखा सकते. हम कितने स्ट्रिक्ट पेरेंट हो जाएं, कितने ही अच्छे पेरेंट हो जाएं, हम घर में डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते. बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चा अपना, हम उसको प्यार करेंगे तो वो वहां पे चाहे पूरे सुबह शाम तक आप उसके सामने बोलोगे, शाम को कुछ भी बोलोगे, वो गड़बड़ हो जाएगा. तो डिसिप्लिन एक ऐसी जगह से सीखा जाएगा जब डिसिप्लिन हो. तो डिसिप्लिन बोर्डिंग स्कूल में ही आएगा. जब बच्चा आपसे दूर रहेगा, एक सिस्टम से पढ़ेगा, एक टाइम टेबल से चलेगा, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आएगा. क्योंकि इनिशियली कोई भी बच्चा वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाता. उसको 2-3 साल लगते हैं कि एक सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए, एक टाइम एडजस्टमेंट करने के लिए, टाइम को मेरिट देने के लिए. Okay. Has the school industry become more competitive in the last 10 years? देखिए, स्कूल इंडस्ट्री इज नॉट एट ऑल कॉम्पिटिटिव. फर्स्टली इट इज, यू हैव टू सेगमेंटाइज योर स्कूल एज अ स्कूल ओनर. ये मैं 2008 से सबको बोल रहा हूँ कि आपको अपने स्कूल को सेगमेंटाइज करना है. आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है. मैंने पहले भी आपको बोला ना, आपका कोई बैरी होना चाहिए, ना आपको किसी से बैर रखना चाहिए. तो आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है. आपको अपने स्कूल को सेगमेंटाइज करना चाहिए कि मैं ये और ऐसे. अगर आप आज, मैं सोचूं मैं अपने आप को दून स्कूल से कंपेयर करूंगा, विच इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल. मैं आज अपने से 500 करोड़ वाले स्कूल के साथ कंपेयर करूंगा, नेक्स्ट इम्पॉसिबल. मेरे साथ सेगमेंट का कोई स्कूल नहीं है, मेरे साथ का कोई स्कूल नहीं है. मैं जो हूँ वो मैं हूँ. जो चीज मैं दे सकता हूँ, कोई भी स्कूल है उसको ये सोच के. पर आप जैसे अपने सेगमेंट में, जैसे मान लो आपके स्कूल की फीस जैसे एक्स अमाउंट है, और आप ही की जैसी फैसिलिटीज और आप ही के जितनी कॉम्पिटिटिव फीस कोई दूसरे स्कूल भी चार्ज कर रहे हैं, तो उनसे तो आप कंपेयर कर सकते हो कि हाँ. देखिए, अब फैसिलिटी में भी फर्क आएगा, कनेक्टिविटी में फर्क आएगा. देखिए, बच्चे के लिए कनेक्टिविटी इम्पोर्टेंट है. फैसिलिटी तो 10 कम या 15 ज्यादा सब में चलेंगी. ओके. कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्डिंग स्कूल में. ठीक. और अब पेरेंट्स क्या फैक्टर्स देखते हैं, चूज वन स्कूल ओवर अनदर टुडे? देखिए, पेरेंट्स के पास ना बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं. वो जब 5 स्कूल घूम लेते हैं, वो फिकल माइंड हो जाते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं मैं घर ही वापस जा रहा हूँ. क्योंकि हर स्कूल अपनी अच्छाई बताएगा. मैं अपनी बताऊंगा, कोई और स्कूल कोई और बताएगा. वो जो अच्छाई बताएगा वो तो अच्छी बात है, पर नेगेटिविटी तो कोई नहीं बताएगा.
नेगेटिव तो आपको पेरेंट ही रिमार्क देके जाएगा कि -2 -4 -3 -2। तो वो नेगेटिविटी जो पेरेंट देके जाएगा उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का काम स्कूल का है। ओके। और आज के टाइम में क्या लग रहा है, इज एजुकेशन बिकमिंग मोर ब्रांड ड्रिवन? एजुकेशन वाज ऑलवेज ब्रांड ड्रिवन। अगर ब्रांड ड्रिवन नहीं होती तो दून स्कूल इतना लंबा नहीं चलता। ओके। एंड व्हाट एक्चुअली बिल्ड्स ट्रस्ट फॉर स्कूल टुडे? स्कूल में ट्रस्ट करने के लिए पेरेंट को कनेक्टेड होना चाहिए, तो कनेक्टिविटी अगेन मेरा प्राइम फोकस रहता है। और पेरेंट्स आज के टाइम में what they are buying, education or aspiration? They should not buy both of them. Okay, then what they should look on? They should look on how the child can be taken care of, connectivity and learning outcome. Okay. Now, what separates genuinely good schools from schools with just strong marketing? देखिए, हर स्कूल अच्छा है, हर स्कूल में लर्निंग अपने आप में है। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग वो पेरेंट को देखना है। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग से स्कूल ग्रो करता है, बहुत अच्छा ग्रो करता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। यू आर आल्सो डूइंग मार्केटिंग फॉर सो मेनी स्कूल्स एंड इंडस्ट्रीज। मार्केटिंग से स्कूल या कंपनी कोई भी ग्रो करेगी। अब once you're selling and you're selling appropriately, so people will come to you and people will get connected to you. तो marketing makes a pivotal role, but at the end of the day आपकी एक कंटेनमेंट लेवल होती है कि भाई मेरे को एज ए स्कूल ओनर मेरे को क्या चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए। वो एक अलग अलग होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती है। Okay. Today, like earlier schools grew through reputation and word of mouth. Today, digital marketing has completely changed the way admission system works. So how it's evolving, how it's changing? What's your? देखिए, जो दिखेगा वो बिकेगा। आज की डेट में आप सोशल मीडिया का जमाना है। आप जितनी बार अपने आप को दिखाओगे उतनी बार पेरेंट कभी ना कभी तो आपके उस पर क्लिक करेगा। वो क्लिक करेगा, आपको उसमें क्लिक होगा और आप बिक जाओगे। एंड आज के टाइम में क्या एडमिशन कैंपेन्स और काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं, या इज इट बिकम कन्वीनियंस बेस्ड कि हाँ हम जितना एडमिशन टारगेट कर रहे हैं वी कैन अचीव दैट बेस्ड ऑन द मार्केटिंग? देखिए, मार्केटिंग आज के डेट में बहुत टफ हो गई है। अनलाइकली 2010, 12, 15, 16, 17 बिफोर कोरोना मार्केटिंग वाज डिफरेंट। आज इतने सारे वेन्यूज बच्चे को पास अपने ही शहर में आ गए हैं। नेम अ सिटी, छोटे से छोटे शहर में भी आज की डेट में 100 स्कूल है, 50 स्कूल है। वो 50 स्कूल तो बहुत अच्छी सी चीजें दे रहे हैं। तो बच्चा आपके पास क्यों आएगा? क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से वो आएगा। और वो वही है कि जब पेरेंट स्ट्रेस में रहता है, करेक्शन सेंटर ढूंढता है बच्चों के लिए, तब वो बोर्डिंग के लिए निकलता है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि मेरे बच्चे को 100 नंबर लाने में बोर्डिंग में लेकर आ रहा हूँ। How difficult is it to generate quality admissions today? Very difficult. Okay. Because business भी करना है तो it becomes very difficult to have a quality admission. So what kind of marketing actually works for schools today? You have social media platforms, different platforms, and you make reels and whatever you are showcasing of your school. And what mistakes do schools make in marketing? Overcommitment, over display. ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल? हाँ, ओवर कमिटमेंट हो गया, ये हम आपके बच्चों को इतने में ये दे देंगे। तो वो XYZ जब बच्चे को पेरेंट को पाती है, फिर वो जब ऑन ग्राउंड जाता है कि सर वो तो काउंसलर ही चली गई है, तो वो डीमार्केटिंग हो जाती है। And what do you think? Parents have started judging schools through Instagram, Reels and social media? Yeah, even the reviews. अब तो रिव्यूज बंद है पिछले 4-5 साल से। तो नहीं तो रिव्यूज भी पढ़ लेते थे लोग। ओके। आपको कोई ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जो आते हैं, कहते हैं कि हमने आपके वीडियो देखे थे या रील देखी थी, उसके बाद? बहुत सारे आते हैं। ये भी बोलते हैं कि आपके बारे में गलत रिव्यू भी लिखा हुआ है। तो फिर मैं कहता हूँ कि भैया लिखा है तो उसने कुछ महसूस किया होगा तभी गलत लिखा है। ओके। एक स्कूल की रेपुटेशन जो रहती है, इट्स बिल्ट ऑनलाइन बिफोर इवन पेरेंट्स विजिट दैट स्कूल। व्हाट डू यू थिंक? वो सब चेक करके आते हैं या नहीं करके आते हैं? देखिए, 70% डू इट, 30% they don't do it. 30% they come with the bent of mind कि मेरे को कराना ही है, मैं अभी छोड़ना ही है, मैं छोड़ के जाऊंगा। और 70% तो ऐसे ही आते हैं कि ये रिव्यू क्या था, ये क्या था, वो क्या था। पूरा एनालिसिस करके आते हैं, उसको पूरा स्कैन कर आते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।
आपने काफी कुछ हमें बताया एंड थैंक यू फॉर बीइंग आवर गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट. Thank you very much. You have Lovely given to so have- much insights on the education marketing and the boarding schools. So thank you and definitely Thank you. any parent who is looking, अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं कि बोर्डिंग स्कूल को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स में हैं या सोच रहे हैं, तो आप डेफिनेटली सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, साई ग्रेस एकेडमी. एंड सर, जैसे कि आप स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो जो लोग ऑलरेडी स्कूल्स रन कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको कई बार काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं एडमिशन्स को लेके. देखिए, मैंने अभी आपको बताया, you have to segmentize your school. Yeah, then you have to plan your branding. ओके. And everything is branding these days. पहले तो अपना आपको सेगमेंटाइज करो, फिर ब्रांडिंग करो. आपका सेगमेंट है नीचे और आपने ब्रांडिंग कर दी ऊंची वाली, तो भी गड़बड़ है. तो भी गड़बड़ है. और सेगमेंट है ऊपर और ब्रांडिंग कर दी लो वाली, तो भी गड़बड़ है. ओके. So you have to make a balance. ओके. ओके. थैंक यू. Thank you. Thank you much.